Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit, and fine. Today we are going to continue portion of that Baswas farm. That chapter we have already till completed in our question, but still we have to recite some topics here. First of all, we already know that in the first step of for cropping anything, first we have to prepare the soil, and after preparation soil, we have to sowing the seeds, and after sowing the seeds are to be sprouts. Some sprouts are open, and then growing the plants. So now we are going the onion crops. Okay, so everyone at home is happy now. Everyone, why happy? Because this time is the onion are big and healthy. All the onion is like very big and healthy. So Amma and auntie use the eels to cut the dried leaves from the top of the onions. So we can say that here the eelage is the one tool and implement that is used for cutting any type of plants. Okay, so the eelage is the sharp, and you have to be careful not to cut your finger. So you have to careful when you cut any type of vegetables with the help of any type of implements which can be used to cut any type of vegetables. Okay, so Appa and uncle fill the sacks with onion. So what is the meaning of sacks here? Sacks means that जो आप कहते हो ना, the बोरिया, right? So मार्केट में कुछ भी हमें पहुंचाने के लिए बोरिया की जरूरत होती है. So we have अप्पा और अंकल, ये दोनों वहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे से ऑनियन की क्रॉप हो जाने के बाद उसको वो कट कर लेते हैं, और कट हो जाने के इलिच से कट करते हैं, और इलिच से कट हो जाने के बाद उनको सैक के अंदर फिल करते हैं. मतलब अम्मा आंटी इलिच से ऑनियन को कट करते हैं, और अंकल और अप्पा क्या करते हैं, उनको सैक के अंदर फिल करते हैं. फिल करने के बाद अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. और अप्पा क्या करते हैं, उनके पापा उनको बड़े से मार्केट के अंदर उनको भेज देते हैं. बड़े से ट्रक के अंदर रखते हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिग मार्केट में भेज देते हैं. और बिग मार्केट के अंदर से स्मॉल मार्केट वाले परचेज करते हैं, और स्मॉल मार्केट के अंदर ही हमारे जो पापा होते हैं, जो मम्मी होते हैं, वो वहाँ से जाके उनको खरीदते हैं. तो हम जो परचेज करते हैं ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो स्मॉल मार्केट से खरीदते हैं, और स्मॉल मार्केट्स वाले कहाँ से लाते हैं, बिग मार्केट से. और बिग मार्केट कहाँ से लेके आते हैं, वो फार्मर के पास से लेके आते हैं. और फार्मर कहाँ से लाते हैं, वो अच्छे से उनकी क्रॉपिंग करते हैं, उनके एग्रीकल्चर करते हैं. ओके, सो नाउ राइट आंसर इन योर नोटबुक. सो वी हैव टू राइट द आंसर इन आवर नोटबुक. व्हाई इज Baswas not able to attend school for some days? So we can say that Baswas is not able to come for some days because here we can say that Baswa is not able to go to school because he has to help his father in the fields. Now second one, are there any fields near your house? What is grown there? So we can say that yes, there is a many field in near my house. Wheat, right, rice, maize, corns, any type of crops are grown in that field. So whatever the crops which are grown in your field, you can write their answer. कोई भी आपको एक ही लिखनी है. अगर wheat उगाते हो तो wheat का लिखना है, maize है तो maize, कौन है तो कौन, अगर राइस है तो राइस की फील्ड आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ Baswas Appa टेक द ऑनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक. थिंक हाउ वुड यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो रोड, प्रॉपर रोड. अगर आप सोचो कि ये जो बसवा के पप्पा है, जो फादर है, वो मार्केट के अंदर पहुंचाने के लिए ट्रक का यूज करते हैं, तो आपको ये सोचना है कि कोई भी रोड नहीं होता तो फ्रूट और वेजिटेबल को हम ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाते, उसको एक प्लेस की दूसरी प्लेस पे हमें पहुंचाना हो तो कैसे कर पाते. सो वी कैन से दैट इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स, फ्रूट्स एंड vegetables will be taken out to another places by bullock cart and on donkey, on horses, on a rickshaw, etc. Think of vehicles we can use during the time there is a no road or no proper roads in a field. Okay, now next one, what kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles in your notebook. तो हम अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल को व्हीकल के ऊपर ले जाने के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, कौन से व्हीकल का यूज़ करते हैं. तो हमें किसी एक का, हमें यहाँ नाम तो बहुत सारे लिखने हैं, बट किसी एक का पिक्चर भी आपको ड्रॉ करना है. सो वी कैन राइट हियर व्हीकल्स लाइक टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. सो इसमें से आप किसी टेम्पो, ट्रक या ट्रैक्टर का किसी का भी पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. दैट इज योर होमवर्क. यू हैव टू राइट दैट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर विच आई हैव गिवन यू. ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट. Here are some pictures of some implements used by Baswas family. Write the names of the implements. Also write what these are called in your area and what work they are used for. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट ब्लैंक में हमें कर्नाटक, मतलब बसवा की फैमिली कहाँ की है, कर्नाटक में, और बेलवानी का विलेज के अंदर रहते हैं. तो बेलवानी का विलेज और कर्नाटक में इस टूल को क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट मीन्स टूल.
इस टूल को क्या कहते हैं, हमारे एरिया में इसको क्या कहते हैं और इसको किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सारे तीनों ब्लैंक के अंदर हमें ये फील करना है। फर्स्ट ब्लैंक के अंदर कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कुरीज। इन और एरिया इट इज कॉल्ड हल। गुजराती में इसको हल कहते हैं ना, और हिंदी में भी इसको हल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्लग कहते हैं। और इसका यूज कहाँ पे होता है, प्लगिंग द सॉइल। ओके, नाउ सेकंड वन, इन दिस चैप्टर दिस पिक्चर दिस इम्प्लीमेंट इट इज कॉल्ड खुंटी। इन कर्नाटका में इसको खुंटी कहते हैं, हमारे एरिया में गुजराती में इसको कुडाल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इन इंग्लिश वी कैन से दैट it is called a hoe. Okay, now work it is digging, इसका digging करने के लिए यूज होता है, right? Then next one, name this implement that is called a इलिच. It is कर्नाटका में इसको इलिच कहते हैं, हमारे एरिया में इसको सिक्कल कहते हैं, और इसका वर्क कटिंग द vegetables. Now next page number, many steps are needed to grow up the crops. Look at the picture and mark them into a correct order. The first picture that is removing the onion, then second removing the weeds, and third one sowing of seed. देखो पहले के पिक्चर में कट कर रहे हैं ऑनियन को, फिर सेकंड में वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना उसको कट कर रहे हैं, थर्ड में देखो सोइंग कर रहे हैं ना, सीड्स को अंदर डाल रहे हैं तो सोइंग ऑफ सीड्स, फोर्थ पिक्चर दैट इज डिगिंग द सॉइल, एंड फिफ्थ पिक्चर दैट इज कटिंग द लार्ज प्लांट्स, एंड फाइनली फिलिंग द सैक्स विद ऑनियन। बोरिया भरते हैं ना लास्ट में, तो हमें इसको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिगिंग द सॉइल, देन सेकंड स्टेप दैट फोर्थ पिक्चर सोइंग ऑफ सीड, देन थर्ड स्टेप दैट इज रिमूविंग द वीड्स, fourth step cutting large plant, fifth removing the onions, and final one that filling the sacks with onion. And after filling the sack with onion, it is directly transported into a big market, and after the big market the purchase in a small market, and finally we will collect that all the vegetables from a small market. Okay, now last one and final one, find out about the crop that is grown in your area and also find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. So some crops like rice, wheat, vegetables are grown in my area, और you have to write the steps in this way. आपको यहाँ पे कुछ जो steps दिए गए ना, इस प्रकार से आपको proper arrangement करना है steps का. Okay, so this is our chapter of Baswas family. Now we are going to ending here. So bye bye, take care.